Hello. 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 आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। All of you are getting my voice? Hello. Class, good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। सर आवाज नहीं आ रही सर, फंस क्या आ रही सर? से आ रही है, अभी आ रही है? यस सर, अब क्लियर आ रही। अच्छा, so good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। Okay, so we will continue with the IPv4 packet diagram. Clear? So we will continue with the detail of the IP version 4, that is Internet Protocol version 4. Clear? So just sharing with the file, that is the type of Internet Protocol, that is IP version 4, IP version 6. So we will discuss it today. So just wait, I am sharing you the PDF regarding that. Okay, so I am sharing a file. Clear? So मुझे बताइएगा सबको शेयर मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. I'm just sharing a file. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? हेलो, सभी को दिख रहा है ये? Is it visible to all of you? So today we will discuss about the Internet Protocol version 4. This is very important addressing scheme. Clear? We are having two type of Internet Protocol versions, that is IPv4 and IPv6. Clear? So both are have their specific configurations and specific meanings. Clear? So start with the IPv4 addressing. In this particular address scheme, we are having 32-bit of address, and we are having a 32-bit of address. It uniquely and universally define the connection of a device clear. Far is clear. Now then it is a 32-bit long length. Exactly, it is having 32-bit long length. Clear. So address, exactly the address is of 32-bit long. Clear. Now this IPv4 address are unique and universal.
All of you are getting my voice properly? Yes, sir. Okay, so this term is very important regarding your examination. There's IPv4 and IPv6. Clear? So address space for the IPv4 exactly is 2 की power 32. इसका meaning क्या है कि as we have 32 addresses provided for the IPv4 address, clear? So we are having the IP address of 32 bits, clear? So if we have how much space this particular IPv4 address occupy, clear? So it can occupy 2 to the power 32. That is the around this figure, clear? That is the billions of space that is available here for the address. So this is how we can represent the IPv4 address. You can see we can represent it in the dot form. Clear? So an IP address, IPv4 address exactly is separated with the dot point. Clear? So we can see these are the dots which separates the IP address. This is the binary representation of the address. Clear? This is the decimal representation of the address. So in decimal notation, we use exactly dot. Clear? To separate out the each byte or bits. Clear? So number. So we have suppose a binary notation of IPv4 address, and if we have been asked to convert it into the dotted decimal notation to decimal, and we got the result. So in binary notation, you can see the dots in between the bits. Here we are not. This is the IPv4 address, but we are not using the dots in between them. Clear? So यहाँ dot नहीं लगा हुआ है. They are having some space. So this is again IPv4 address, but it is not having the dots. So dots will be used in the decimal representation. So when we convert this binary code, binary data to the decimal data, so it will be separated. So it is what the IPv4 address, dotted decimal IPv4 address. There. So now again, if you further ask about convert the IPv4 address from dotted decimal notation to binary notation, then you can convert it into the binary notation. Again, it is the reverse process of that. Also, you get the result like what? Binary to decimal. It is the inverse of the binary to decimal. You can convert करेंगे to dots. So this is the question. Now we have some numeric questions like this, and find the error if any in the following IPv4 address. So you need to find the error in the following IPv4 address. Clear? So you need to recognize the error in the IPv4 address. तो पहली बात तो आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. इसमें आपको बताना है कि क्या किसी IPv4 एड्रेस में एरर है. So as per the information provided to us that IPv4 address is what 32 bit long. सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि 32 bit से अगर ज्यादा डेटा होता है इसका मतलब वो IPv4 एड्रेस कैटेगरी में नहीं आता. ठीक. दूसरी चीज डॉट्स होने चाहिए डेसिमल में. ठीक है. उसके बाद फिर तीसरी चीज हमारी क्या इंपॉर्टेंट है कि 4 बाइट से ज्यादा मतलब जो हमारा डेटा होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली इट इज रिप्रेजेंटिंग. देखिए जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 4 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर नंबर्स आपका 5 तक जा रहा है तो इट इज व्हाट नॉट एन IPv4 एड्रेस. जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ आपको. जैसे अगर आप ये बी वाला पार्ट देखिए तो बी वाले पार्ट में टोटल 1 2 3 4 एंड 5 है. 5 नंबर्स आ रहे हैं जो कि डॉट 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 से डिफरेंशिएट अलग किए गए हैं. तो ये हमारा IPv4 एड्रेस नहीं है. ठीक है. सो एन एड्रेस which is only having 4 numbers, not more than 4, will be the IPv4 address. तो सेकेंड वाला तो इस वजह से भी नहीं है क्योंकि उसमें 4 से ज्यादा आपके नंबर है. फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है
कि कोई भी आईपी एड्रेस लिखते समय हम किसी भी डेसिमल डिजिट में स्टार्टिंग में जीरो नहीं लगाते, ठीक है। जैसे यहाँ जीरो यूज हो रहा है ना, लीडिंग जीरो, सो इट शुड नॉट बी देयर, सो इट इज आल्सो एन एरर्ड मैसेज, क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है, 045 शुड नॉट बी देयर, क्लियर। थर्ड वन आप देखेंगे 75.45.301.14, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है ये one of the digit, that is 301 is exceeding the 255, that is the maximum limit of the number। तो देखिए मैक्सिमम लिमिट हमारी 255 तक होती है और ये 301 आ गया बीच में, ये which is greater than 255, so ये मैसेज भी हमारा एरर्ड है, दिस इज नॉट एन पर्टिकुलर प्रॉपर IPv4 address। If we talk about the last one, that is the D1, D को आप देखिए तो इसमें क्या है, दिस इज सब, इट इज गिवन इन द मिक्सचर ऑफ बाइनरी एज वेल एज डेसिमल, सो इट इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम लिखेंगे या तो बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे या डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। इफ यू रिप्रेजेंट इट इन द बाइनरी फॉर्म, यू नीड नॉट टू मेंशन द डॉट्स इन बिटवीन द नंबर्स, तो डॉट्स आप नहीं लगाएंगे क्योंकि वो स्पेस से हमारा मैनेज होता है, लेकिन अगर डेसिमल में करेंगे तो डॉट्स भी लगे होंगे, ठीक है, स्पेस देने के लिए। सो यहाँ पे बाइनरी एंड डेसिमल दोनों आ रहा है, सो इट इज अगेन इनकरेक्ट। सो आपको समझ में आया क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, if I ask question to someone, otherwise as well, so kindly tell that the voice is clear or not, so that Sir. clear. We are having two types of addressing, clear. So difference बता देता हूँ कि दोनों में difference क्या है, what is the difference between classful and classless addressing, clear. So we have the difference in the last, so I'm just showing you. Say what is the difference between IPv4 and IPv6, उसके बाद what is the difference between, अभी वो भी हम बताएंगे IPv4 IPv6 का difference, and what is the difference between classless and classful addressing. So ये आपको दिख रहा होगा, मैं शेयर कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको? Is it visible? Yes, sir. ये सभी को दिख रहा है? Is it visible properly? Yes, sir. Okay. So this is very important question in your examination point of view. It is very important. What is the difference between classful routing and classless routing? Yeah, classful addressing and classless addressing. Clear? So if we talk about this, so यहाँ देख सकते हैं हम लोग, विंडो आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। Now, if you see a classful routing में कुछ आपके जो डिफरेंसेस दिए हैं, सो कम से कम 5 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। तो 5 तो पता ही होने चाहिए, और मोर देन 5 इफ यू आर नोइंग देन इट विल बी बेटर। सो पहला जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है कि इसमें जो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क है वो सपोर्ट नहीं करता है, किसमें? क्लासफुल एड्रेसिंग में। It doesn't support the variable length subnet mask. Variable length को support नहीं करता है, इसका मतलब static होता है इसका। The subnet mask for the classful routing is static. Clear? While in case of classless routing, the variable length subnet mask is supported. ठीक है? Variable length subnet mask support करता है। ठीक है? और इसके बाद जो second point है आपका,
इम्पोर्टेंट है कि जो क्लासफुल राउटिंग होता है इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, इसको ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, व्हाइल इन केस ऑफ क्लासलेस राउटिंग इट रिक्वायर्स लेस बैंडविड्थ। ठीक है, क्लासलेस राउटिंग में जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, the third point is what? The routing hello message are not used. Clear? क्लास फुल राउटिंग है, इसमें आपका हेलो मैसेज यूज नहीं होता राउटिंग के लिए। ठीक है, while in case of classless routing hello message are used। फिर फोर्थ पॉइंट आपका जो है क्लासफुल राउटिंग में कि क्लासफुल राउटिंग डज नॉट इंपोर्ट सबनेट मास्क इन, ठीक है, ये इंपोर्ट नहीं करता सबनेट मास्क को, while in case of classless routing it imports the subnet mask। clear? फिफ्थ पॉइंट है कि ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, I will share you this information। clear? So you can get the data from here, there is no issue। in classful routing address is divided into 3 parts। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासफुल एड्रेसिंग में जो पूरा एड्रेस होता है उस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है नेटवर्क, दूसरा पार्ट होता है सबनेट और तीसरा पार्ट होता है होस्ट। तो जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो किसी डिवाइस को असाइन नहीं किया जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेटवर्क एड्रेस होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासफुल राउटिंग व्हिच इज नॉट एलोकेट टू एनी ऑफ द नेटवर्क। किसी नेटवर्क को एलोकेट नहीं किया जाता है, वो सॉरी किसी डिवाइस को एलोकेट नहीं किया जाता है। इट इज एग्जैक्टली यूज्ड ग्लोबली। क्लियर? एक तरह से ये इंटर नेटवर्किंग के लिए है। दिस इज एग्जैक्टली इंटर नेटवर्किंग भी नहीं कहेंगे, इट इज एग्जैक्टली यूज्ड ऑन द ग्लोबल लेवल। ठीक, तो ये फिक्स होता है, एग्जैक्टली नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइडिंग के लिए होता है। सो इट इज नॉट यूज्ड फॉर बाय एनी अदर डिवाइस। क्लियर? सो ये ध्यान रखना। बाकी जो होस्ट एंड सबनेट है ये यूज होते हैं डिवाइसेस के लिए, है ना। इसके बाद जो क्लासलेस राउटिंग है, इसमें एड्रेस जो डिवाइड होता है 2 पार्ट पे होता है। पहले वाले में 3 पार्ट में था, इसमें 2 पार्ट में होता है। वो 2 पार्ट कौन सा है? सबनेट एंड होस्ट। इसमें आपका नेटवर्क एड्रेस नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है क्लासफुल राउटिंग, इधर रेगुलर और पीरियोडिक अपडेट्स आर यूज्ड। ठीक है, फिर रेगुलर एंड पीरियोडिक अपडेट्स यूज होते रहते हैं। while in case of classless routing triggered updates are used। तो triggered updates आपके यूज होते रहते हैं। क्लियर? नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या है? CIDR, that is classless inter-domain routing. It is not supported in classful routing, while CIDR supports in the classless routing। Clear? Then next है routing subnets are not displayed in the other major subnets, while in case of classless routing subnets are displayed in other major subnets। And the next difference है in classful routing fault can be detected easily, while in classless routing fault detection is little tough। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। हेलो, समझ में आ गया ये डिफरेंस? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? क्लास आवाज आ रही है सभी को? हेलो, बिहू राय है? बिहू राय इज देयर? बिहू राय, अलका सिंह। So now we come to again the our point which we were discussing, which we were discussing. Yes, so we come to the next point, that is again we come to IPv4 addressing. Clear? So
what we were talking about in classful addressing, a large part of the available address were wasted, क्योंकि हमारा जो हाँ, एक चीज हमें और बतानी है इसमें आपको, फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। What? The classless addressing. The space is divided in address space है, 5 classes में divided होता है, D and B. ठीक है? ये टॉपिक देखिए, क्लास A अगर पहला बाइट हमारा 0 है, ठीक है, फर्स्ट बाइट इंफॉर्मेशन या 0 इन दिस पर्टिकुलर स्टैंड, तो देख सकते हैं ये पहला बाइट है या सेकंड बाइट है, 4 बाइट्स का होता है हमारा आईपी एड्रेस। क्लियर? तो अगर पहले वाले जो हमारा बाइट्स है उसमें जो आपकी पहली बिट अगर 0 है, ठीक है, फर्स्ट बाइट में पहली बिट अगर 0 है तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द क्लास ए एड्रेस। और फर्स्ट बाइट में अगर आपका पहला 2 बिट 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज क्लास बी एड्रेसिंग। क्लियर? एंड अगर आपका पहला 3 बिट आपका, ठीक है, अगर आपका 3 बिट जो है 110 है तो इट विल बी क्लास सी एड्रेसिंग। क्लियर? और अगर आपका हेलो, आवाज आ रही है? अगर आपका क्लास सी में क्या होगा, स्टार्टिंग फर्स्ट बाइट में 3 बिट आपकी 110 होगी तो क्लास सी एड्रेसिंग होगी। और अगर आपकी जो स्टार्टिंग की 4 बाइट्स हैं दैट इज 1110 तो ये क्लास डी कैटेगरी में आएगा। और अगर स्टार्टिंग की फर्स्ट बाइट्स आपकी 4 बाइट्स 1111 है तो ये क्लास ई कैटेगरी में आएगा। ठीक है? तो वी आर हैविंग व्हाट डिफरेंट क्लासेस, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज। तो ये बाइनरी के फॉर्म में हो गया, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर? और अगर मान लीजिए आपका डेसिमल में देखा जाए तो डेसिमल में अगर 0 से 127 तक है, पहला बाइट आपका 0 से 127 में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इट इज ए क्लास ए एड्रेसिंग। 128 से 191 तक लाई कर रहा है तो क्लास बी हो जाएगा। 192 से 223 तक लाई कर रहा है तो क्लास सी हो जाएगा। 224 से 239 तक लाई कर रहा है तो क्लास डी हो जाएगा। और 240 से 255 तक लाई कर रहा है तो क्लास ई हो जाएगा। ठीक है? दिस इज हाउ वी कैन categorize the classes in the addressing. Clear? Now we have a numerical. Clear? So we have a numerical, find the class of each address. Clear? Find the class of each address. तो आपको इसमें classes find करनी है। So there is a numerical, if you see the first वाला part देखिए, A part, उसमें एक address दिया हुआ है and you need to find the class of this address. तो कौन सा address आपको ये दिख रहा है? Can anyone tell which address is this? पहला वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, द फर्स्ट ए पार्ट। अभी हमने आपको डिटेलिंग बताई है कि कैसे हम एड्रेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमने जो पहला ए पार्ट है उसमें देखिए स्टार्टिंग वाले बाइट को देखिएगा, यू कैन सी ओनली द स्टार्टिंग बाइट। बाइट कौन सी है स्टार्टिंग में? ये वाली है। दिस इज द स्टार्टिंग बाइट। क्लियर? इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर? सो इसी के बेसिस पे हम क्लासेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसमें चूंकि स्टार्टिंग बाइट आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, पहला बाइट आपका, पहला बिट आपका 0 है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका क्लास ए एड्रेस हो जाएगा। ठीक है? ये फर्स्ट बिट आपकी 0 है तो दिस इज ए क्लास ए एड्रेस। ठीक है? उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, हेलो हेलो
हेलो हेलो अनुष्का दीक्षित हैं? अनुष्का दीक्षित, रोल नंबर 30। हेलो कृतिका शर्मा, हेलो आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो okay, so if you see the B part, you can see in the B part what is going on. The first three bits, if you see this bits information is starting from the 110. So the first three bits are what? 110. So it is what? The category of class B. Clear? This is a class B addressing, and not class B, class C addressing, because इसमें जो starting के दो bits हैं वो 1 है और last का थर्ड bit जो आपका 0 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर starting की 3 bits आपकी 110 है, ठीक है, फर्स्ट बाइट में, तो इट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ क्लास सी एड्रेसिंग। ठीक है, ऐसे ही सी वाला पार्ट आप देख सकते हैं। सी वाले में 14.23.120.8 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपको पहचानना है कि इज इट ए क्लास, व्हिच क्लास एड्रेसिंग इट इज फॉलोइंग। क्लियर? सो 14.23.120.8, तो इसमें आप डेसिमल के बेसिस पे पहचान सकते हैं। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि हमारा चूंकि पहला वाला जो 14 है तो 0 से 127 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट इज अगेन ए क्लास ए एड्रेसिंग। क्लियर? देख सकते हैं, तो सी वाला पार्ट है, अगेन इट इज ए क्लास ए एड्रेसिंग। और फिर डी वाले में देखेंगे तो 252 दिया हुआ है पहला वाला बाइट। तो 252 किस रेंज में लाई करेगा? 252 will be lie in the this range, 240 to 255. So it is in the category of class E. Clear? So it is a class E. Clear? So the first byte is 252, so it is a class E type of address. Clear? ये clear हुआ सभी को? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है? All of you are getting my voice? Hello? Nobody is responding. All of you are getting my voice? Hello? Okay. So now I think some network issue is there on your side. So now we are discussing about the number of blocks, block size and application. So if the number of in class A type addressing, the number of blocks are 128. So it is a type of unicast addressing. If you talk about class B, the number of blocks are 16,384. So it is the type of again unicast addressing. Class 3 is also a unicast addressing. Class D and E are multicast and reserved. So you need to know the class E addressing is multicast. Class E addressing is reserved, while class D is multicast. Now, in classful addressing, a large part of the available address were wasted.
क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या है, एक जो है लार्ज पार्ट हमारा वेस्ट हो जाता है। क्लियर? तो इसको हम लोग ओवरकम करते हैं जो क्लासलेस एड्रेसिंग आएगा उसमें। ठीक है, तो दिस इज द डिफॉल्ट मास्क फॉर द क्लासफुल एड्रेसिंग, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे क्लास ए का जो डिफॉल्ट मास्क होता है वो ये है 255.0.0.0, और ठीक है, क्लास बी एड्रेसिंग का जो है वो है, आप देख सकते हैं 255.255.0.0। It is having the CIDR that is /8/16, ठीक है, and /24 for class C। और क्लास सी में जो हमारा डिफॉल्ट मास्क है दैट इज 255.255.255.0, ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट मास्क। सो ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इस डिफॉल्ट मास्क का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्लासफुल एड्रेसिंग विच इज ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट इज रिप्लेस्ड बाय क्लासलेस एड्रेसिंग। इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है क्लासलेस एड्रेसिंग से। क्लियर? Now we are having questions over here, so we will discuss this later on. हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट एड्रेस हो गया, एड्रेस एक ब्लॉक ऑफ एड्रेस, IPv4 में हम लोग जो ब्लॉक एड्रेस डिफाइन करते हैं वो इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, x.y.z.t /n in which x.y.z.t defines one of the address, clear, and the rest /n defines the mask, clear, this is represent the mask, clear। तो जो ऑब्लिक में लिखा हुआ है ये मास्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो x डॉट हेलो, आवाज आ रही सभी को? हेलो, 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 Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके ओके। So so all of you are requested kindly check the message which I have sent to you in the group. Okay, so the first address in the block, जैसे देखिए जो IPv4 एड्रेस है उसमें जो हमारा ब्लॉक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो जैसे फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है 32 - n बिट्स को, सॉरी जो पहला वाला ब्लॉक है वो n बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेस्ट बिट्स हैं वो हमारी 32 - n बिट्स हैं। क्लियर, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, ए ब्लॉक ऑफ एड्रेस is granted to a small organization. We know that one of the address is 205.16.37.39/28। Clear? So what is the first address in the block? तो इसमें आपको first address निकालना है block में। Clear? So अगर हम इस question में first address find करना चाहें तो how we can find the first address? So we are giving this address for the IPv4। तो फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो एड्रेस है इसको हम लोग
सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्म, तो दिस विल बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एड्रेस। क्लियर? नाउ जो ये ऑब्लिक 28 दिया हुआ है, इस ऑब्लिक 28 को हम 32 माइनस 28 करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, 28 इज द सबनेट एड्रेस या मास्क एड्रेस। क्लियर? तो हमारे पास टोटल 32 बिट का एड्रेस होता है IPv4 का, तो उसमें से ये मास्क एड्रेस माइनस कर दीजिए। तो 32 माइनस 28 करेंगे, कितना आएगा, 4 एड्रेस। ये जो 4 बिट्स, तो ये 4 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लास्ट की बिट। तो सबसे लास्ट वाले बिट्स हैं, दैट इज द 4 बिट्स। इनको अगर हम 0 कर दें, तो जो ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, इसमें जो लास्ट की 4 बिट हैं उसको हम 0 बना देंगे, तो ये हमको दे देगा। क्यों 4 बिट ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो सबनेट एड्रेस दिया वो 28 दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑब्लिक करके जो लिखा हुआ है, तो इसी को हमने माइनस किया टोटल एड्रेस में से IPv4 के। टोटल 32 बिट का IPv4 एड्रेस है, उसमें से हमने 28 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 4 आ गया। तो लास्ट के 4 बिट्स जो हैं, जो हमारे इस बाइनरी में इसको कन्वर्ट करने पे आया है, इसको ये आया है बाइनरी में कन्वर्ट होने, इसमें जो लास्ट की 4 बिट्स हैं राइट मोस्ट वाली, उनको 0 कर दीजिए। 0 हमने कर दिया, तो हमें ये जो है मिल गया फर्स्ट एड्रेस। तो इसको फिर हमने अगेन किसमें कन्वर्ट कर लिया, अगेन वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट एड्रेस। क्लियर? So we have got the first address, that is 205.16.37.32. This is the first address. Is it clear? सभी को समझ में आ रहा है? तो how we can got the first address, ये समझ में आ गया सभी को? I think you all are aware. So now in the second question we will find the last address. तो last address अगर हमको निकालना है, तो last address में just उल्टा करते हैं। तो जो हमने उसी सेम क्वेश्चन को अगर रिपीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट एड्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो 4 बिट हमारी थी, उन 4 बिट को हमने जब 0 किया था, लास्ट वाले 4 बिट को, तुमको फर्स्ट एड्रेस मिला था। अब उन्हीं 4 बिट को अगर आप 1 कर देते हैं, अगर वो 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर वो 0 है तो उसको 1 करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, 1 है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है लास्ट बिट का एड्रेस निकालने के लिए। तो फर्स्ट बिट में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट बिट वाले में 1 को 0 करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट मोस्ट 32 माइनस इन बिट्स को हम 1 कर देंगे, तो हमको लास्ट एड्रेस मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन में अगर हम देखें, इफ यू रिपीट द प्रोसेस फॉर द सेम क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी सेम क्वेश्चन के लिए। इसमें हमने क्या किया, ये जो लास्ट वाले 4 बिट्स हैं इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको 1 करेंगे, तो पहले 3 तो 1 आपके है ही हैं, इस 0 को भी 1 कर दीजिए। तो ये जो 0 आ रहा है ये वाला, इसको भी 1 कर देंगे, तो वी विल गेट द 1 1 1 1। तो द आंसर will be what, this address 205.16.37.47। पहले वाले में क्या था, पहले वाले 20 show is the first one। यदि आवाज आ रही है Yes, sir. दोबारा शेयर करता हूँ, इशू हो रहा है। I'm again sharing, just wait। So what we are talking about this portion। तो अगर आप इसको देखिए, तो हम लोग ये अभी जब फर्स्ट एड्रेस निकाल रहे थे, तो ये हमने बात किया था, ये हमारा फर्स्ट एड्रेस आ गया था जब हमने लास्ट के 4 बिट्स को 0 कर दिया था, तो दैट इज 205.16.37.32। जब लास्ट एड्रेस निकाला, तो आप देख सकते हैं पहले 3 तो सेम है, लास्ट वाला ही चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम लोग 0 या 1 कर रहे हैं, तो इट विल चेंज द एड्रेस। सो फर्स्ट और लास्ट एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? सो अगर हम इसमें जो हमारे पास निकल के आया, अगर हम नंबर ऑफ एड्रेस निकालना चाहें ब्लॉक्स में, तो दिस विल बी 2 की पावर 32 माइनस n। दिस विल बी द एड्रेस in this block। Clear? So we are having n is equal to 22, so it means that the number of address will be what, 2 की power 32 minus 28, so 2 की power 4 आ जाएगा, it will give you the 16। Clear?
So in this fashion, you can find the first and last address. I think सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी. किसी को कोई डाउट है? Is there any doubt to someone? Okay. Now the next one is what? एक चीज आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है. जो फर्स्ट एड्रेस होता है ब्लॉक में, जैसे 3 एड्रेस में हम अगर डिवाइड करते हैं IPv4 एड्रेस को, तो जब फर्स्ट एड्रेस इन ए ब्लॉक इज नॉर्मली नॉट असाइंड टू एनी डिवाइस. क्लियर? इट इज नॉट असाइंड टू एनी डिवाइस. ये किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं होता है. ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है? क्योंकि ये हमने अभी आपको बताया था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को. सो इट इज नॉट असाइंड टू एनी ऑफ द डिवाइस. क्लियर? तो फर्स्ट एड्रेस हम किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं करते हैं. ये आपको माइंड में रखना है. ठीक है? बाकी जो सेकंड और थर्ड एड्रेस है, सेकंड और थर्ड एड्रेस कौन सा है? होस्ट एंड मास्क एड्रेस. ये हमारे डिवाइसेस को असाइन होते हैं. 3 एड्रेस में हमने ब्रेक किया था. आपका पहला था आपका नेटवर्क एड्रेस, फिर होस्ट एड्रेस, देन मास्क एड्रेस. तो नेटवर्क एड्रेस केवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं किया जाता. क्लियर? अब आप देख सकते हैं इसमें, तो पहला एड्रेस हमने हटा दिया है, बाकी 3 एड्रेस आपके पास दिख रहे हैं IPv4 एड्रेस में. तो दिस इज अ 2 लेवल ऑफ हायरार्की. तो ये इसमें आपका ये एरिया कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, देन एक्सचेंज ऑफिस रिप्रेजेंट कर रहा है, देन सब्सक्राइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है? तो इस तरह से हम, ये आपका फ्रेम है. ये फ्रेम इन ए कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. यू कैन सी दिस इज द 28 बिट and for 4 bits, 28 bit represent the network prefix and the 4 bit represent the host address. Clear? So each address in a block can be considered as a 2-level hierarchical structure. The leftmost n bits exactly defines the network and the rightmost 32 minus n bit define the host. तो जैसे 2 पार्ट में हम डिवाइड अगर कर रहे हैं, तो जो पहला पोर्शन होगा, जैसे टोटल 32 बिट का एड्रेस होता है, तो पहला अगर n बिट का एड्रेस है, तो लेस्ट विल बी 32 minus n बिट्स. तो जो पहला वाला n बिट है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज द प्रीफिक्स. क्लियर? एंड द लास्ट 32 minus n, दैट इज द सफिक्स, वो आपका होस्ट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है? ये चीज ध्यान रखना है. तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ 3 लेवल हायरार्की. पहला वाला 2 लेवल हायरार्की था. दिस इज अ 3 लेवल हायरार्की. 3 लेवल हायरार्की में क्या होता है कि वी आर हैविंग द 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एड्रेस को. ठीक है? तो 26 1 and 5, दिस इज सबनेट 1, एंड सेकंड इज सबनेट 2 and 3, जिसमें हमने 26 2 and 4 में डिवाइड किया हुआ. ठीक है? तो जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पहला 26 बिट आपका नेटवर्क प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, 1 बिट आपका सबनेट प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 बिट्स होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है? ऐसे ही सबनेट 2 and 3 में देख सकते हैं, पहला 26 बिट नेटवर्क प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वन इज सबनेट प्रीफिक्स, एंड द लास्ट 4 बिट इज द होस्ट एड्रेस. क्लियर? So इसके बाद देख सकते हैं, this is an what numerical that is related to internet service provider. So we will be discuss later on. ये सब उसी पे बेस्ड हैं, टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. Now we come to implementation. The network allocation clear. Network address resolution protocol is having several hosts with different IP addresses, and they are what communicated with the NAT router, that is the network address resolution based topology. Clear? यहाँ पे हमने routers को use किया हुआ, that is NAT router. It is just providing the private addresses, that is the site using the private addresses. Clear? So इनको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम we are using the NAT router. Clear? So this is the diagram. This is the process how the addresses are exchanged. Clear? To the NAT router. Clear? This is the source information which is going to the internet, and then
destination address information is coming from the internet to the NAT router. So it is a what? It is a server or it is a host where the source and destination and exactly IP addresses, that is the same type of IP addresses because they are in the same physical network. So it is exchanged from the internet service. Clear? It is getting the information from the internet service provider. So it is a what? This is how the NAT translation exists. That is the network address translation, how it is exists. You can see here. Now, this is how an ISP and NAT exists. Clear? So this is ISP stands for Internet Service Provider, and this is NAT is exactly the network address translation. So you can see we are having several hosts with the different IP addresses. They are all connected with the ISP side here, and then they get the information by connecting with the internet. Clear? By a single line. So if we talk about the IPv6 addressing, clear? So before going to IPv6, we just check the differences between IPv4 and IPv6. Then we come to the introduction of IPv6. So मैं differences आपको दिखा देता हूँ. So these are some differences, okay? Okay, so you all have got this. Kindly check. You all have got this. I have assigned and you all have got this. Hello. Class, all of you have got this or not? No, sir. No. I have assigned. By my side, I have assigned to all of you. Yes, sir. So I think you all have been assigned. Is there any issue? Is there any issue? No, sir. Okay, so kindly attempt it. And also all of you are requested to kindly mention your name as roll number as well. So do not mention, mark your attendance, kindly mark the attendance. Clear?
So I'm going to hello. So I'm just going to close the session, and you all are requested to do it fast. Clear? So thank you, class.